Good morning, students. Yesterday I taught you how to convert galvanometer into ammeter and then galvanometer into voltmeter. Now let me take a numerical which will help you in better understanding of this conversion. We have a galvanometer whose resistance is 12 ohm. It was denoted yesterday by capital G, and it gives full scale deflection when current of 2.5 milliampere is passed through the galvanometer. So how will you convert this galvanometer into ammeter of range 0 to 7.5 ampere, and then galvanometer to be converted into voltmeter of range 0 to 10 volt. So we know galvanometer can be converted into ammeter by connecting a very low resistance in parallel with galvanometer. So this is I current, maximum current I. So out of this I current, only Ig should pass through galvanometer, and rest of it should go through this low resistance S. Here these two currents, either say Ig or नीचे से I minus Ig, they will combine, and again the outgoing current will be I. So this combination is called ammeter. So since G, which is the resistance of galvanometer, and this S low resistance, they are in parallel, so potential difference across G will be equal to potential difference across S. So this is a resistance G, so potential difference across this resistance is Ig into G. It should be equal to potential difference across S, so current through S is I minus Ig into S. It gives S is equal to Ig into G upon I minus Ig. So substitute values, given values, I is 7.5 ampere, Ig is 2.5 milliampere. So before putting the value of Ig, you need to convert it into ampere. So it is 2.5 into 10 raised to power minus 3 ampere. So on substituting value, we get S is equal to 0.004. So really it is a very low resistance. Then what is the total resistance of this ammeter? So G resistance and S, they are in parallel. So let us suppose resistance of ammeter is Ra. So 1 upon Ra is equal to 1 upon G plus 1 upon S. It gives Ra is equal to G S upon G into S upon G plus S. Substitute value, so on calculation it is again approximately equal to 0.04. So we can say the resistance of ammeter will be almost equal to the resistance of shunt. Now how to convert this galvanometer into voltmeter? By connecting a high resistance in series with galvanometer. So we will choose value of R in such a way that this voltage V can send only Ig current through this meter. So ये combination, this is voltmeter. Since these two are in series, so therefore potential difference which is applied will be equal to Ig into G plus R. So it gives R is equal to V upon Ig minus G. Substitute values, so it gives 3988 ohm, which is high value. So total resistance of this combination is R plus G, they are in series. RV stands for resistance of voltmeter, so it is 4000. Now I am going to discuss why ammeter is always connected in series in the circuit. Why ammeter is not connected in parallel? So I am taking an example. This is 10 volt battery, and this is say bulb. Its resistance is 10 ohm. So according to Ohm's law, the current in the circuit will be V upon R.
So 10 volt upon 10 ohm, this is 1 ampere. When I connect this ammeter, say its resistance is only 1 ohm, then current which this battery will send, यहीं पे सीरीज में मैंने एमीटर लगा दिया. So now current will be, say, I dash is equal to 10 volt upon total resistance, which is 10 plus 1, it is 11. So this is the value of current. So which is again almost equal to 1. So therefore, when we connect ammeter in series, there is hardly any decrease in current. If it is ideal, then its resistance will be 0 and there will be almost no change in current flowing in the circuit. लेकिन आई हैव टेकन इट्स रेजिस्टेंस 1, जबकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम होती है एमीटर की रेजिस्टेंस की. सो जितनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू एमीटर की कम होगी, उतना ही ये बेटर क्वालिटी का एमीटर होगा. बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस 0.5 हो तो इट विल बी 10 प्लस 0.5 टोटल रेजिस्टेंस, और करंट विल बी मोर क्लोज टू 1 एम्पेयर जो पहले फ्लो कर रहा था. सो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस device, and when it is connected in series, there is almost no change in value of the current flowing in the circuit. Now let us see what happens if it is connected in parallel. ये मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम. सो इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस पैरेलल में 1/10 प्लस 1 अपॉन दिस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, it gives us 10/11 ohm. So what will be the value of current? Say I double dash. So this I double dash will be voltage divided by resistance of the circuit. It is 11 ampere. It is very high value of current. तो वी कैन से जब हम एमीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओम से भी कम हो जाएगी. आई हैव टॉट यू अर्लियर कि जब हम दो रजिस्टर पैरेलल में जोड़ते हैं तो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस जो उनमें कम वैल्यू का रजिस्टर होता है उससे भी कम होगी. इफ़ यू लुक एट इट विल बी अराउंड 0.9 मे बी 9 ओम, सो विच इज़ लेस देन 1 ओम. तो जो छोटी वैल्यू का रजिस्टर है उससे भी कम होगी. सो जब इन दोनों की रेजिस्टेंस 0.99 होगी तो अब आप ये मान लो कि यहाँ पे 2 के बजाय वी हैव 1 रजिस्टर ऑफ 10/11 ओम, इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर. तो अब करंट जो फ्लो करेगा, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज आई डबल डैश. सो दिस आई डबल डैश करंट is given by this, it is 11, which is very high value of current. So we can say जब हम पैरेलल में एमीटर को जोड़ेंगे तो सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा and which may damage this bulb. So that's why it is never connected in parallel. If accidentally it is connected in parallel, the whole circuit will be damaged. Now voltmeter, we have a circuit, there are 2 bulb or 2 resistor, total resistance of this combination is 100, so current is again 1 ampere. Potential difference between A and B, इधर current जा रहा है तो A point will be at higher potential. According to Ohm's law, this difference is current in this resistor into resistance A और B के बीच में, it is 60. सो ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस दिस इज 60 वोल्ट. नो अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 60 है तो आई विल यूज़ वोल्ट मीटर टू मेजर दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. तो अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो एक तार वोल्ट मीटर की इधर जोड़ दीजिए, दूसरी तार इधर जोड़ दीजिए. So when I connect this voltmeter in parallel,
इन दोनों के पैरेलल के कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस इट विल बी 48 ओम. यू कैन कैलकुलेट 1/60 प्लस 1/240 इज इक्वल टू 1/R. So that total resistance of this parallel combination is 48. So ये दोनों 48 के रजिस्टर का काम करेंगे. ये जो कम वैल्यू का है उससे भी कम आ गई. अब टोटल रेजिस्टेंस 98. सो करंट इन द सर्किट दिस I is voltage upon total resistance, it is 1.1 एम्पेयर. सो करंट में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई. हियर current was 1 ampere. Now when this voltmeter is connected in parallel, then the resistance of this combination will decrease. We can say A और B के बीच में पहले 60 थी रेजिस्टेंस, अब 48 हो गई. उसके कारण करंट में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई. सो अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B यू कैन कैलकुलेट. इट इज़ VA माइनस VB लिखिए या VAB. दिस इज इक्वल टू करंट जो फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. इट गिव्स यू 52.8 वोल्ट. सो जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में दैट इज 60 वोल्ट. बट व्हेन आई कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेजर करना था वो पोटेंशियल डिफरेंस ही कम हो गया एंड देयर इज ए ह्यूज एरर ऑफ 7.2 वोल्ट. तो कैसे इस एरर को कम किया जा सकता है से अब मैं दूसरा वोल्ट मीटर लेता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस 940 ओम है. तो देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है. जब 940 का इसके पैरेलल में जोड़ेंगे 60 ओम वाले के तो दिस रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 56.4. तो अब करंट इट विल बी 100. ये 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इट इज़ 56.4 प्लस 40. Current is now 1.03. Now what will be the potential difference between A point and B point? So A और B के बीच में अब potential difference it is current जो flow कर रहा है इसमें into resistance between A and B. So it is 53.1 volt. अब एक्चुअल ये और वोल्ट मीटर इतना मेजर कर रहा है. सो अब एरर ऑलमोस्ट 7 का है और ये यहाँ पे एरर इट वॉज ग्रेटर देन 7. सो व्हाट हैपन्स, दिस इज मोर क्लोज टू 60, दिस इज लेस क्लोज टू 60. सो वी कैन से जब इसकी रेजिस्टेंस कम थी तो एरर ज़्यादा आ रहा था. अगर इसकी रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की ज़्यादा हो जाए तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी दैट विल बी मोर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू. सो अगर इसकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा कर दी जाए तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 60 था A और B के बीच में ये और भी ज़्यादा 60 के करीब आएगा. So that's why the resistance of voltmeter should be very very high. अगर आइडियल होगा तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और यहाँ से जो करंट जा रहा था से 1 एम्पेयर तो इस तरफ ना के बराबर क्या बिल्कुल ही नहीं जाएगा और सारा करंट पहले 1 एम्पेयर इससे जाता था और 1 एम्पेयर ही जाता रहेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट होगा. सी इसमें करंट जा रहा है हमारा 60 ओम वाले में करंट इज 1 एम्पेयर. Now if I connect a voltmeter of low resistance then this current जो यहाँ से 1 एम्पेयर चला था यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. कुछ करंट इसमें से जाएगा कुछ करंट इसमें से जाएगा और जब इसमें से करंट कम जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कम हो जाएगा बिकॉज VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB. सो पहले 1 एम्पेयर था, वोल्ट मीटर लगाने के बाद कुछ करंट उस 1 एम्पेयर में से इधर चला जाएगा और इसमें से करंट जो पहले 1 जा रहा था कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी A और B के बीच में कम हो जाएगा.
बट इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज इंक्रीज, तो इस 1 एम्पेयर में से न के बराबर करंट वोल्ट मीटर की तरफ जाएगा, क्योंकि जितनी इस ऊपर वाली आर्म की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही कम करंट इधर जाएगा, और इसमें से लगभग उतना ही करंट जितना पहले जा रहा था वो जाएगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर विल बी मोर एक्यूरेट. So if it is connected in series, then what will happen? अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो ये 60 + 40 100, अगर से इसकी 400 रेजिस्टेंस है तो टोटल सर्किट की 500 हो जाएगी. जैसे दिस इज योर 60 ओम, दिस इज 40, और इफ़ आई कनेक्ट वोल्ट मीटर हेयर, वोल्ट मीटर जोड़ने का मतलब हुआ कि हमने एक हाई रजिस्टर सीरीज में जोड़ दिया. इसकी रेजिस्टेंस लेट अस सपोज 400 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज नाउ 60 + 40 100, 100 + 400 500. So current in the circuit will be potential difference divided by 60 + 40 + 400. This is 100/500. So only 0.2 ampere current will flow in the circuit. पहले कितना था सर्किट में करंट? इट वाज 1 एम्पियर, और जब हम वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो इन द सर्किट. एंड फिर ये बल्ब जो है जब कम करंट जाएगा तो ये बिल्कुल ही कम ब्राइटनेस देंगे. सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट कनेक्ट वोल्ट मीटर इन सीरीज इन द सर्किट. This is a spring. When current is passed through this spring, it will shrink. Why? See, से इधर से करंट गया तो ये करंट इट इज़ क्लॉकवाइज इन दिस लूप. यहाँ से जाके इधर गया, सॉरी, ये करंट इधर गया ऐसे, फिर इधर गया, फिर ये इधर, इसमें भी 2 नंबर में क्लॉकवाइज, 3 नंबर में भी क्लॉकवाइज, 4 नंबर लूप में भी क्लॉकवाइज. And we know 2 wires carrying current in same direction attract each other. So these loops will attract each other because current in these loops is in same direction, and that's why the length of spring will decrease, it will shrink. Now another question, proton and an alpha particle enter at right angle into uniform magnetic field of intensity B. Calculate ratio of radii of their paths when they enter with number 1 same kinetic energy, number 2 same momentum. We know when a charged particle enters magnetic field, it experiences force which is given by this. Here it is given the angle between B vector and B is 90. So this is QVB. This force will deflect charged particle and it will put that charged particle in circular path. So it requires this much amount of centripetal force. तो इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स ये और लग इतनी रही है, तो देयरफॉर दे मस्ट बी इक्वल. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द रेडियस. V कट गया एंड रेडियस इज mv/qv. नाउ दोनों का मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम हो, लीनियर मोमेंटम p. Then from here we find that R is inversely proportional to Q, या आप ये कह लीजिए radius of proton will be momentum of proton, let it be P. चार्ज ऑन प्रोटॉन, और दोनों ही सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हुए हैं गिवन, और दोनों का मोमेंटम भी सेम है. सिमिलरली आर अल्फा विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, दोनों का बराबर है. हमने पी ले लिया अल्फ़ा पार्टिकल का भी और प्रोटॉन का भी. चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल एंटर कर रहा है. सो इट गिव्स अस ऑन डिवाइडिंग आर पी अपॉन आर अल्फ़ा,
ये P और P कट जाएगा, B और B भी कट जाएगा। सो हमारे पास आएगा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज दिस। नाउ व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. It has 2 proton and 2 neutron. Neutron is neutral particle, so charge on alpha particle is equal to plus 2e. दो प्रोटॉन के ऊपर plus 2e. So charge on alpha particle plus 2e. Charge on proton is plus e, so it is 2:1. Now then kinetic energy same हो तो we know kinetic energy is equal to mv square by 2. Multiply and divide right hand side by m. So ये m और m कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा mv square by 2. So this numerator is momentum का square upon 2m. So k is p square by 2m and this is 2mk is equal to p and under root. So p आ गया मेरा. So we know, ये हमने भी ट्राई किया था. So put p is equal to root 2mk. So radius is equal to, ये यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2mk अंडर रूट अपॉन qb. Now for proton we write this is mass of proton, 2 mass of proton into kinetic energy of proton divided by charge on proton magnetic field जिसमें proton एंटर किया. Similarly radius of alpha particle will be under root 2 mass of alpha particle, kinetic energy of alpha particle given है, दोनों की kinetic energy सेम है, जितनी प्रोटॉन की है उतनी ही अल्फा पार्टिकल. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड. डिवाइड, you will get rp upon r alpha. On dividing you will get rp, it will be mp upon m alpha under the root multiplied by, it will be q alpha q proton, ये अंडर रूट में नहीं. सो मास ऑफ प्रोटोन mp and mass of alpha particle is 4 times mass of proton multiplied by चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अभी बताया था 2e, चार्ज ऑन प्रोटोन e. देखिए इसका मास, ये 2 प्रोटॉन है, 2m 2mp हो गया 2mp, और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर. सो इट इज़ 2 न्यूट्रॉन का मास भी 2mp. So 4mp is mass of alpha particle. So mp कट गया, this is 1/4 का रूट means 1/2 और इधर 2, so it is 1:1. So when alpha particle and proton will enter magnetic field with velocity perpendicular to it, then radii of both will be equal. This is all about magnetic effects of current. Next is magnetism. What is magnet first? Magnet is a material that has both attractive and directive property. ये क्या होती है अभी हम देखेंगे. There are 2 types of magnets. Natural magnets. Natural magnets we can say God made. Artificial magnet which are made magnet by artificial means.
So example of natural magnet is magnetite, which is iron ore, and formula is Fe3O4. Artificial magnet are of different types. Bar magnet, it is like a brick. This is south pole, this is north pole. Compass needle या magnetic needle, you know, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स घोड़े के पैर की शेप का है. So these are different types of artificial magnets. Now some of the properties of magnets. Attractive property. A magnet attracts small pieces of iron, cobalt, nickel towards itself. And this attractive property is maximum near the ends of a bar magnet. हम bar magnet की ही बात करेंगे ज़्यादा. So this is a bar magnet. This is south pole. This is north pole. अगर आप टेबल पे ये लोहे का बुरादा, आयरन फाइलिंग्स कहते हैं इनको, तो ये टेबल पे स्प्रिंकल कर दें और मैग्नेट रखें और फिर जेंटली इसको टैप करें ऐसे ऐसे, तो यू विल सी मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स विल बी कंसंट्रेटेड नियर द एंड्स. ये बिल्कुल इसमें भी सबसे ज़्यादा इसमें क्लिंग करेगी नियर द एंड्स, और यहाँ पे थोड़ी सी होगी, यहाँ भी थोड़ी सी. सो इट इंडिकेट्स दैट दिस अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम नियर द एंड्स. और इस अट्रैक्टिव पावर का यू कैन से कि दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. दिस पॉइंट विच इज़ नियर द एंड, ये किनारा है तो ये किनारे से थोड़ा सा अंदर है, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल. और ये वाला किनारा जो कि सॉरी दिस पॉइंट विच इज़ inside the end of the magnet is called north pole. So this attractive power is maximum near the ends of bar magnet. And these reasons, ये point और ये point where attractive power of a bar magnet is maximum, these two reasons are called poles. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अगर आप मैग्नेट को स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दें तो इट विल ऑलवेज अलाइन इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन. जो किनारा मैग्नेट का जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो किनारा जियोग्राफिक साउथ की तरफ होगा दैट एंड इज कॉल्ड साउथ पोल. सो दिस इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. Chinese use this directive property to know directions in the sea. Like poles repel each other, north and north will repel, south and south will repel, and unlike pole they will attract each other. Then very important property, poles always exist in pair. It means कि अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, ये इसके दो पोल हो गए, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. अगर हम इसको दो पार्ट्स में ऐसे काट दें तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो लेफ्ट वाला किनारा है इसमें सिर्फ साउथ पोल रह जाएगा और इधर ये जो दूसरा हाफ है इसमें सिर्फ नॉर्थ होगा. नो, ऑटोमेटिकली जैसे तुम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पैदा हो जाएगा, और ये जो ये वाला एंड है यहाँ पे साउथ पोल. फिर अगर आप इसको कट करेंगे दो इक्वल हाफ में तो जो दो टुकड़े मिलेंगे उसमें भी दोनों पोल होंगे, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, और जो दूसरा हाफ है इसमें भी साउथ, इधर साउथ और इधर नॉर्थ. So if you continue dividing magnet in parts, तो जो छोटा से छोटा पार्ट भी होगा उसमें भी दोनों पोल होंगे. So we can say north and south poles can not be separated, they will always exist in pair.
अगर आप इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे, तो ये ऊपर वाला, इसमें लेंथ तो उतनी रहेगी, ये नीचे वाला हाफ, फिर इसमें भी ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और इसमें भी साउथ एंड नॉर्थ. सो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. देन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने किया था कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें इस चार्ज का इफ़ेक्ट फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, हम कहेंगे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँगा तो दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस सोर्स चार्ज, इधर फोर्स लगेगी, एंड से दिस फोर्स इज 5 न्यूटन. अगर मैं यहाँ रखूँगा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है इट विल बी से 3 न्यूटन कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी और एक जगह पे 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूँ तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर नेग्लिजिबल फोर्स लगाता है. सिमिलरली इधर चला जाऊंगा, यहाँ फोर्स 5 न्यूटन, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और एक जगह पे 0. इसी तरह इधर आ जाइए, एक जगह पे 0 हो जाएगी, नीचे आइए तो एक जगह 0 हो जाएगी, इधर आइए तो एक जगह 0 है, ऊपर की तरफ आइए तो एक जगह पे 0 हो जाएगी, इधर जाइए तिरछा तो भी 0 हो जाएगी. सो वी कैन से, अगर मैं ये कहूँ कि ये चार्ज फुटबॉल के सेंटर पे है, सोर्स चार्ज, तो अगर टेस्ट चार्ज को इसके अंदर यहाँ रखा जाए तो फोर्स लगती है, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ और कम, यहाँ लगभग 0. सो वी कैन से फुटबॉल के बाहर रखेंगे यहाँ पे तो फोर्स विल बी 0. यहाँ फोर्स लगेगी, यहाँ कम लगेगी, यहाँ और कम, यहाँ और कम, और यहाँ जैसे फुटबॉल के ऊपर लगभग 0. बाहर रखेंगे टेस्ट चार्ज को तो फोर्स 0. इधर भी एक जगह यहाँ पे 0 हो गई फोर्स. We can say the force of repulsion of this charge can only be experienced by test charge when placed inside the football. So we will say कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फुटबॉल के अंदर जो स्पेस है उसी में ही एक्सपीरियंस की जा सकती है. सिमिलरली, जैसे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या फ़र्क होगा, सिर्फ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, बस यहाँ रखेंगे तो लगभग 0 फोर्स, लगभग 0 फोर्स. यहाँ रखूँगा, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज यहाँ रखूँगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ रखूँगा और भी ज़्यादा लगेगी, या ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स 0. तो दिस स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इन्फ्लुएंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली आप इसमें सोर्स मोनोपोल है, अकेला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, अकेला नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. बट मैग्नेटिज्म में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, अकेला नॉर्थ या साउथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे. तो हम अगर ये अज्यूम कर लें कि अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज मैग्नेटिक चार्ज. दिस नॉर्थ पोल हम कहेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, और साउथ पोल कैरीज नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज. सो इसके आसपास अगर आप हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो. यहाँ हाइपोथेटिकल
टेस्ट नॉर्थ पोल रखेंगे फोर्स कम हो जाएगी, यहाँ रखेंगे फोर्स और कम हो जाएगी। तो वी कैन से इस रीजन के अंदर ये नॉर्थ पोल जो सोर्स है इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। इसके अंदर इस फुटबॉल के अंदर कहीं पे भी हम हाइपोथेटिकल मोनोपोल रखेंगे नॉर्थ तो फोर्स लगेगी। यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। So space around a magnet in which its influence can be experienced, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ स्पेस, और इलेक्ट्रिक चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। If it is uniform magnetic field then it is represented by equidistant parallel lines and it is in the plane of phase, we can say parallel to the table. If it is perpendicular to the table and directed upward ऊपर की तरफ then it is represented by dot equidistant dots, and if it is perpendicular to the base and directed downward into the table then it is represented by equidistant crosses. Magnetic pole, I told you कि these are the regions at which magnetic attraction is maximum. तो ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन का सेंटर है ये किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, तो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की दूरी दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, और इस बार की पूरी लेंथ इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो इस बार की है वो मैग्नेटिक लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा है, and its ratio is 0.84. This is magnetic length, this is geometric length. Then magnetic equator, ये मैग्नेट को अगर हम, ये मैग्नेट है, ये इसका मिड पॉइंट है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग दिस मैग्नेट, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। जैसे हमारी इक्वेटोरियल लाइन होती है इसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। देन कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज होता था, यहाँ पे इट विल बी मैग्नेटिक चार्ज, और दिस द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दीज आर टू मैग्नेट्स, दिस इज मैग्नेट नंबर 1। सपोज इसके साउथ पोल के पास -QM1 चार्ज है और इसके नॉर्थ पोल के पास उतना ही बट पॉजिटिव QM1 चार्ज, दिस इज मैग्नेट नंबर 2। इसके नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक चार्ज QM2, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक चार्ज, और ये 2 नंबर मैग्नेट का, दिस इज -QM2। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नॉर्थ पोल्स इज R। सो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ये होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी हमारी P और एक पोल के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस डाइपोल की। सो इट इज़ ए डाइपोल, इसमें भी 2 पोल हैं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेट इज ए डाइपोल, और ये इसके पास -QM मैग्नेटिक चार्ज एंड नॉर्थ पोल के पास पॉजिटिव QM मैग्नेटिक चार्ज। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी डिनोटेड बाय M, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से। सो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर ऑफ द पोल्स, इसकी या इसकी मैग्नीट्यूड QM इज द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic pole multiplied by distance between south and north poles. So it is a vector and this is its direction is from south pole to north pole. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में it was from negative charge to positive charge, और यहाँ पे negative magnetic charge to positive magnetic charge, और you can say south pole to north pole. Unit, its unit एम्पेयर मीटर मैग्नेटिक चार्ज के,
और ये डिस्टेंस है मीटर, सो एम्पेयर मीटर इज द यूनिट. यू कैन कैलकुलेट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज फ्रॉम दिस इक्वेशन, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम डिफाइन किया था. देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वाइट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इसमें क्या आ जाएगा कि इट इज कर्व टेंजेंट टू विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो यहाँ पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट है. दिस टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट. अगर यहाँ डायरेक्शन निकालनी है, ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो दिस टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सी पॉइंट. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट करी थी, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लॉट की जा सकती है. द ओनली डिफरेंस इज कि दीज आर क्लोज कर्व. दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, यहाँ से निकलेगी जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलती थी. सो ये ऐसे जा रही है ऐसे. तो आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. So they are closed curve unlike electric field lines. Then they do not intersect like electric field line. They start and terminate perpendicular to the surface of magnet. Then relative closeness of lines give measure of strength of magnetic fields. This all I have taught you in electrostatics. This is uniform electric field. इसमें डिस्टेंस इस लाइन, इन दो लाइनों के बीच में ज़्यादा है. इन दो लाइनों के बीच जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है, जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे. सो दिस इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन ये जो है इसमें स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी, बिकॉज दीज लाइन्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर. इसमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे किन्हीं दो सक्सेसिव लाइन के बीच की डिस्टेंस कम है. सो ये अगर सपोज़ यहाँ 5 टेस्ला, यहाँ 5 टेस्ला, यहाँ 5 टेस्ला है हर जगह, तो इसमें इट विल बी ग्रेटर देन 5 टेस्ला से इट इज़ 8 टेस्ला एवरीवेयर. यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8. सो रिलेटिव क्लोजनेस जहाँ ज़्यादा पास होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा होगी. तो यहाँ देखें, यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है और यहाँ देखें इन्हीं दो के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी. सो वी कैन सी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक, और यहाँ पे इन्हीं दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे और भी कम होगी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर. सो कल हम पढ़ेंगे आगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.